हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैटेगरी 2 ऑफ क्लास ए। जैसा कि कैटेगरी 1 में हमने देखा हाउ टू फाइंड आंसर ऑफ z रेज टू n प्लस z बार रेज टू n। कैटेगरी 2 में हम देखेंगे कैसे किसी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी और पोलर फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई रेज टू 100 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आई रेज टू 50। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना ही पोलर फॉर्म में है। सो कैटेगरी 2 में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे a प्लस आई बी और r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कैटेगरी 2। So in the first question of category 2, we have to find modulus and principal value of argument. Here principal value of argument means argument should belongs to an interval minus pi to pi of this particular expression which is not in standard form. So whenever we are required to find argument and modulus of a complex number, that complex number must be in its standard form. Okay, so I must convert this particular expression in its standard form. So in order to do that, I must evaluate 17th power of 1 plus I root 3, and to evaluate 17th power of 1 plus I root 3 I must use De Moivre's theorem. Okay, similarly here it is also required to use De Moivre's theorem, because in order to evaluate root 3 minus I raised to 15 again we have to use De Moivre's theorem. Okay, so to use De Moivre's theorem I must convert these two complex numbers into its corresponding polar form. So let's convert 1 plus I root 3 into its corresponding polar form. So let r1 and theta 1 be the modulus and argument of 1 plus I root 3. So r1 will be equals to square root of sum of squares of real part and imaginary part, that is 1 square plus root 3 square, which is equals to square root of 1 plus 3, that is square root of 4, which is equals to 2. Okay, and theta 1 will be equals to, now a and b both are positive, therefore theta 1 will be equals to tan inverse b by a, that is theta will belongs in first quadrant. Okay, so these concepts are very well explained in the video of polar form, so please watch that video in order to understand the shortcuts for calculating theta, that is argument. Okay, so here theta 1 will be equals to tan inverse root 3 by 1. Okay, so now tan inverse root 3 is actually pi by 6, pi by 3. Okay, so therefore 1 plus I root 3 is equals to r1, that is 2, into cos of pi by 3 plus I sin pi by 3. Now 17th power can be calculated as 1 plus I root 3 raised to 17 equals to 2 raised to 17 into cos of pi by 3 plus I sin pi by 3 raised to 17. So this is equals to 2 raised to 17. Now by De Moivre's theorem I can multiply this 17 with pi by 3. So it will be cos of 17 pi by 3 plus I sin of 17 pi by 3. Okay, now using Euler's equation we can write it as 2 raised to 17 into e raised to I 17 pi by 3. So please do not evaluate this particular expression, because जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करना होता है देन आप उस एक्सप्रेशन को वहां पे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पे हम पुट करेंगे फिर इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, देन हम दोनों को साथ में इवेल्युएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अब मैं कन्वर्ट करूंगा रूट 3 माइनस आई को उसके पोलर फॉर्म में। ओके, सो लेट r2 रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ रूट 3 माइनस 1, सो r2 विल बी इक्वल्स टू root 3 square plus minus 1 square, because real part is root 3 and imaginary part is minus 1. So this is equals to 3 plus 1, that is 4, that is square root of 4. So I will get 2. Okay, and now theta 2, which is argument of root 3 minus I, can be evaluated इन शॉर्ट वे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ इसको कैलकुलेट करने का। अब देखिए, अगर रूट 3 माइनस आई आप देखेंगे तो ए पॉजिटिव है एंड बी क्या है, नेगेटिव है, तो थीटा को कहां बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कभी भी आप याद रखिए यहाँ पे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के
दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक क्लॉकवाइज में कैलकुलेट किया हुआ, एक एंटी क्लॉकवाइज में कैलकुलेट किया हुआ। सो एंटी क्लॉकवाइज में कैलकुलेशन के लिए जो शॉर्टकट थी मैंने पोलर फॉर्म में डिस्कस की है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लॉकवाइज वाली शॉर्टकट बताता हूँ। सपोज कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता था √3 + i, ओके, सो इसका आर्ग्यूमेंट कहाँ बिलोंग करता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, और उसका आंसर क्या होता था, tan इनवर्स b by a, दैट इज tan इनवर्स 1 by √3 विच इज इक्वल्स टू π/6। ओके, सो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं तो वो क्या होगा, √3 - i। सो मैंने बताया था अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -θ। सो √3 - i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट होगा -θ। सो ये भी होगा π/6, पर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे -π/6। ओके, सो θ2 कैन बी रिटन एज -π/6 हियर। ओके, बट अगर मैं इसे कन्वेंशनल वे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करूं तो यहां पे देखेंगे आप ए पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव है। आप प्लीज पोलर फॉर्म की वीडियो मतलब देखिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में मॉडुलस और एम्पलीट्यूड ये दो अक्सर सब जगह यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो इसका कंसेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। सो देखिए θ2 का एक और आंसर है, वो क्या है, 2π - tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ b/a। ओके, सो अब आप यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स b/a क्या निकाला, मॉड हमने 1/√3, ठीक है। सो ये होगा π/6, तो इसका आंसर क्या होगा, 11 π/6। अब देखिए ये एंगल भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। कैसे, आप ये दोनों को सम कीजिए, π/6 + 11 π/6, तो आपको क्या मिलेगा, 12 π/6, दैट इज 2π। सो ये टोटल कितना है, 2π। एक्चुअली में आप देखेंगे ये π/6 है और ये बचा हुआ जो है ये 11 π/6 है। ओके, पर 11 π/6 कैसे मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और π/6 क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है इसलिए इसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, -π/6। तो दोनों ही एम्पलीट्यूड वैलिड है। ओके, सो यहाँ पे मैं कौन सा यूज करना चाहिए, ये वाला, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। अगर हम ये यूज करूंगा तो थोड़ा कैलकुलेशन मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 है, 15 फिर 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा कम स्टेप में करना है तो आप एम्पलीट्यूड वो चूज कीजिए जो मतलब कि छोटी हो, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3 - i is equals to r, that is 2 into cos of -π/6. So cos of -π/6 will be cos π/6 plus I sin of -π/6. Now sin of -π/6 will be minus sin π/6, so I will get -i sin π/6. अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं समझ पाए तो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर मेरे पास √3 + i होता था तो उसका पोलर फॉर्म क्या होता था, 2 into cos π/6 plus I sin π/6। तो √3 - i का क्या होता था, सिर्फ आपको i को किससे रिप्लेस करना है, -i से। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं अब इसका 15th पावर कैलकुलेट करूँ, ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट √3 - i raised to 15, ओके, इक्वल्स टू 2 raised to 15। अब इसका रेस्ट में 15 अगर करूंगा तो यूजिंग डी मॉरियस थ्योरम आई कैन मल्टीप्लाई 15 विथ π/6, तो आई विल गेट cos of 15 π/6 minus I sin 15 π/6। okay, so now this is equals to 2 raised to 15 into e raised to minus I 15 π/6। okay, so let this is equation number 2 and this is equation number 1। सो अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे वही तो चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर द गिवन क्वेश्चन, लेट दिस इज q, ओके, दिस एक्सप्रेशन, लेट दिस एक्सप्रेशन इज q। सो q विल बी इक्वल्स टू 2 raised to 17 into e raised to I 17 π/3 divided by 2 raised to 15 into e raised to minus I 15 π/6। so this is equals to, now 2 raised to 17 upon 2 raised to 15 will be 2 स्क्वायर एंड इनटू e रेज टू, नाउ अगर ये एक्सप्रेशन अपवर्ड में ये ऊपर जाएगा, ठीक है, e रेज टू माइनस I 15 π/6, तो क्या हो जाएगा 17 π/3 में ऐड हो जाएगा 15 π/6, सो आई विल गेट I e रेज टू I इंटू 17 π/3 प्लस 15 π/6। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू ई रेज टू आई 34 प्लस 15। ओके, सो दैट विल बी आई थिंक 49, 34 प्लस 15 49 बाय 6 पाई। ओके, सो
now this is equals to 4 into, so now this can be simplified as cos of 49 pi by 6 plus I sin 49 pi by 6. ओके, सो अब इसे हम कैसे आगे सिंप्लीफाई करें, तो 49 को आप 6 के मल्टीपल में लिखो, ठीक है। तो इसे अब कैसे कर सकते हैं हम, देखिए 49 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज 48 पाई प्लस पाई बाय 6, सो विच इज इक्वल्स टू 8 पाई प्लस पाई बाय 6। सो अब देखिए cos ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होगा, सो 8 पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस समथिंग करने पर, ठीक है, दैट इज cos ऑफ 8 पाई प्लस थीटा और cos ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस में देखा था ये कि cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू के प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो cos ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 6 होगा cos ऑफ पाई बाय 6, और साइन ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होगा, साइन पाई बाय 6। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 इंटू cos पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6। ओके, सो अगर आप इसे कंपेयर करोगे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से, तो आपको r मिलेगा 4 एंड थीटा मिलेगा पाई बाय 6, हेंस द मॉडुलस इज 4 एंड आर्ग्यूमेंट इज pi by 6, and you can observe that the argument lies between minus pi to pi, hence this argument is principal argument. Okay, so let's see the question number 2.